और प्लाज्मा जीन और extra nuclear gene. Why extra nuclear gene? Because these genes are not present inside the nucleus. Extra nuclear. That's why using the term extra nuclear gene. बात करें तो extra nuclear gene है। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे हम। लिखते जा रहा हूँ आपके लिए each and everything I'm going to write here, so easily you can make your notes. You can write everything. You should make your notes, your running notes. Okay na? The total cytogene present in cytoplasm. Total cytogene present in cytoplasm is called plasmon. क्या बोलते हैं? Plasmon. और plasma gene इसको बोलते हैं और plasmon. Total gene present in cytoplasm is called plasmon. A gene which is located in the nucleus is called karyogene. जो न्यूक्लियस के अंदर है वो कैरियोजीन, और जो न्यूक्लियस के बाहर हैं साइटोप्लाज्म में है साइटोजीन. ऑल द जीन ऑफ द साइटोप्लाज्म करेक्टली कॉल्ड आपका प्लाज्मोन. प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा बाहर प्रेजेंट है प्लाज्मोन. डन और नॉट? इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजीन. दूसरे पॉइंट समझेंगे. इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजीन इन ऑर्गेनिज्म अकर्स ओनली थ्रू द फीमेल. ये फीमेल से जा रहा है, उसको कौन समझेंगे. एक्चुअली जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है बेटा, तो फर्टिलाइजेशन में एग एंड स्पर्म दे आर गोइंग टू फ्यूज. ओके, एंड एग का जो अमाउंट द साइटोप्लाज्म इनसाइड द एग दैट इज मच मोर क्वांटिटी इन कंपेयर ऑफ स्पर्म. एक्चुअली स्पर्म में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज देयर, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक, तो इनहेरिटेंस रह ही गई है. और व्हाइल द साइज ऑफ एग इन कंपेयर ऑफ स्पर्म is much more time larger and having very much large amount of cytoplasm in compare of sperm. bunch and the things there beta, ये जो cytoplasm है it having cytogene in the form of mitochondria. अगर plants है, animal मतलब plants तो है और animal है. in cases of plants they having plastid also. बात करें तो as we all are knowing mitochondria having their own DNA, plastids they having their own DNA. we will discuss in it. अभी इसी बात करेंगे हम लोग plastid inheritance, mitochondrial inheritance, इसी में बात करेंगे maternal inheritance. so what I told, the cytoplasmic inheritance performing or shown by females only by females. Why? Due to the presence of much more amount of cytoplasm in the egg, in the female gamete in compare of male gamete. birthing and the thing there, अगर मैं हायर एनिमल्स हायर की बात कर लूँ इंक्लूडिंग केस ह्यूमन बीइंग्स, तो जो बेटा स्पर्म है, स्पर्म का न्यूक्लियस यानी हेड सिर्फ जो है हेड पीस ओनली एंटरिंग इनसाइड. देयर माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडिल पीस रिमेन आउट. इन केस ऑफ हायर एनिमल्स इन जनरली देयर माइटोकॉन्ड्रिया रिमेन्स आउट. व्हेन माइटोकॉन्ड्रिया रिमेन्स आउट, माइटोकॉन्ड्रिया द डीएनए तो बाहर रह गया, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली न्यूक्लियस मूव कर रहा है. While in cases of egg, the huge numbers of cytoplasm with the mitochondria planted with the plastids are there. So these characters are moving from mother. That clear? That's why this is also called maternal inheritance. क्या बोलते हैं हम? Maternal inheritance also. Done or not जी? तो इतना हमें ध्यान रखना है. Clear? तो maternal inheritance बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं? हमने बात की ऐसे कि the male gamete of a higher plant is called male nucleus. The male gametes of higher plant is called male nucleus. It has very minute negligible amount of cytoplasm. So male gametes only inherited karyogene, ना कि cytogene. Only karyogene inherited from the male. While in cases of female gametes inherited karyogene as well as cytogene. That's why maternal inheritance. बात करें, thus inheritance of cytogene occurs only through female, so called maternal inheritance. Getting or not? बात क्लियर है? And the things there. अब कैरेक्टर्स की थोड़ी सी बात कर लें कैसे क्या ये जा रहा है. As I told कि cytoplasmic inheritance है. Cytoplasmic inheritance means to say the characters which present on autosomes. You are unable to detect them. You can't. ठीक, जैसे आप यू कैन फाइंड कि ये कैरेक्टर्स जो है ऑटोसोम पर, बिकॉज ऑटोसोम्स हैं सेक्स क्रोमोसोम दे प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट the genes which present outside the nucleus in karyogene. So if
there is a reciprocal cross in this condition, if हमने क्या कर, if there is a reciprocal cross in this condition, then result may be affected. Reciprocal cross I told you, ठीक, आपने एक एक्सपेरिमेंट लिया, एन एक्सपेरिमेंट वंस क्या किया आपने, ठीक, वंस आपने एक ए लिया, ठीक, आपने ए और बी टू इंडिविजुअल्स आर देयर, आपने एक बार ए को मेल लिया और फीमेल को बी ले लिया। इन अनदर एक्सपेरिमेंट आप ए जो है ए को फीमेल लेंगे और बी को मेल लेंगे। यू आर अल्टरिंग द सेक्सेस फॉर द सेम कैरेक्टर्स, यू आर अल्टरिंग द सेक्सेस फॉर द सेम कैरेक्टर। एक बार ए पेरेंट्स के लिए आपने लिया कि मेल जो है यहां पर फर्स्ट केस में मेल इज टॉल और फीमेल इज डॉर्फ, फिर बच्चे तो ऐसे आनी आनी। इन द नेक्स्ट केस आपने फीमेल को टॉल लिया और मेल को डॉर्फ लिया, स्टिल देयर किड्स विल बी लाइक दिस, क्लियर। तो हाउ दीज करेक्टर, तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं, पहले तो थियोरेटिकली देयर इज नो चेंज, but practically changes are there. As I told you before also, practically changes will be there. You can't say that their father is tall, their kids will be tall, their mother is tall, their kids will be tall. You can't say, but you can see their movement. कि if their characters present in the cytoplasm of female, these character will move in the next generation. But if these character present in the cytoplasm of father, they will not move. So cytoplasmic inheritance will move from only mother, not from father. इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्लियर और नॉट, डन। अगली बात इसी में समझेंगे। व्हाट आई टोल्ड, इफ देयर इज अ क्रॉस, जी बात क्लियर है, ठीक। व्हाट आई टोल्ड बेटा, इफ देयर इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस, हमारी बात हुई तो आप कंडीशंस को फाइंड कर सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग सम सेल ऑर्गेनेलीज, कौन, एज माइटोकॉन्ड्रिया, as chloroplast. Why? As we all are knowing, they are autonomous cell organelles. They are autonomous cell organelles. ये autonomous cell organelles है. They are autonomous cell organelles. They having their own DNA. They having their own DNA. So हमने कहा some cell organelles involving in cytoplasmic inheritance. बात clear? As mitochondria हो गया, as आपका chloroplast हो गया, they are involving. ओके ना जी, इसलिए वी आर यूजिंग अ टर्म ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज है तो ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस टर्म यू कैन यूज। ऑर्गेनेलीज में एज आई टोल्ड प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्लास्टिड है मतलब प्लास्टिड इनहेरिटेंस और माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कुछ टर्म सुनेंगे। पहली बात मैंने की क्या, सबसे पहले बात कर रहा हूं बेटा मैं आपकी प्लास्टिड इनहेरिटेंस की। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस गेटिंग एनर्जी सुनेंगे। बात हो रही है आपके बेटा प्लास्टिड इनहेरिटेंस, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हुई थी। इन मिराबिलिस जलापा लीफ, ब्रांच लीफ, ठीक, कलर इज डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ प्लास्टिड। ओके, इन लीव्स बात समझेंगे, इन मिराबिलिस जलापा जो कलर है, ठीक, तो जो ट्विग्स है तो इस पे जो लीफ लगी है, ऑफ कोर्स द कलर इज डिसाइडेड बाय द क्लोरोप्लास्ट, टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसकी बात कर रहा है इन द लीफ सेल। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। गेट क्लियर, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा, द कलर ऑफ द ब्रांच इज डिसाइडेड बाय द कलर ऑफ द लीफ और द कलर ऑफ द लीफ इज डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बात क्लियर, उसके बेसिस पर दिस इज प्लास्टिड इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जिस तरह का प्लास्टिड होगा और मदर से ही जाना है, ठीक, जैसा होगा वैसे ही पहुंचेगा। लाइक मैंने बात की मेल स्टेराइलिटी इन मेज प्लांट, मेल स्टेराइलिटी इन मेज प्लांट। जिससे बात कर लूं मेल स्टेराइलिटी, यानी कि जो मेल प्लांट है वो स्टेराइल हो जाए, ठीक। सो द जीन ऑफ मेल स्टेराइलिटी इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी, मेज प्लांट, मेज जो है मेज प्लांट सेल्स में, ठीक। तो द जीन ऑफ मेल स्टेराइलिटी इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इफ अ नॉर्मल मेल प्लांट क्रॉस्ड विद अ फीमेल प्लांट, अ नॉर्मल मेल प्लांट क्रॉस्ड विद अ फीमेल प्लांट which has a gene of male sterility, then all the generation of male become sterile.
आसर है वो कह रहा है एक नॉर्मल प्लांट है, मेल प्लांट का क्रॉस करवा दिया अ फीमेल प्लांट विच हैविंग द जीन फॉर मेल स्टेराइलिटी, तो फीमेल में मेल स्टेराइलिटी जीन इज देयर, इनका क्रॉस करवाया एज आई टोल्ड इफ फीमेल हैविंग साइटोप्लाज्मिक जीन इट विल पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो मेल sterility gene if present in female it passed in the next generation, then all male will be sterile, all male will be sterile because a particular gene was present with female which which was inherited by females only, cytoplasmic inheritance है. What I told, if a normal male cross with a female which having gene for male sterility, then all the offspring coming generations will be sterile, male will be sterile. अगर वाइस वर्सा कर देंगे, अगर a male sterility gene present in male and making a cross with a normal female, no effect will be there, there will be no effect because the cytoplasmic inheritance will move from only female not from male. If the genes present in male it will not pass. Getting or not? लास्ट बात समझ लें आप इसकी, नेक्स्ट एग्जांपल्स में इसी में एल्बिनिस इन प्लांट, एल्बिनो कलरलेस, ठीक, आप जानते हैं क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन है लीव्स, इफ क्लोरोफिल में क्लोरोसिस हो जाए तो वहां पर येलोनेस आ सकती है, अदर थिंग्स आ सकती है. सो व्हाट आई टोल्ड एल्बिनिस इन प्लांट, एल्बिनिस प्लांट ऐसे बात करो, जीन ऑफ एल्बिनिस फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, जीन ऑफ एल्बिनिज्म फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट and gene of albinism in maize is lethal. ये चीज समझेंगे आप. But I told the gene of albinism found in chloroplast, तो अगर वो जीन क्लोरोप्लास्ट फीमेल के क्लोरोप्लास्ट में है और आपने एक नॉर्मल मेल का क्रॉस करवाया विद अ फीमेल, ठीक, विच हैविंग जीन फॉर एल्बिनो, उसके क्लोरोप्लास्ट में एल्बिनो का जीन है, तो क्या होगा, जो न्यू जनरेशन आएगी दे ऑल विल गेट albino, they all will be albino. और as I told कि gene of albinism in maize is lethal, मतलब इनके maize plant if these such types of genes will come, plant will die, plant मर जाएगा. क्लियर है कि नहीं? रिकैप समझेंगे. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है, गिवन बाय कोरेंस, ठीक, कार्ल कोरेंस की जो बात थी, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस दैट इज गिवन बाय कोरेंस. Inheritance of character through cytoplasm through cytogene, the genes which present inside the cytoplasm they are cytogene. All the genes of the cytoplasm collectively called plasmon. Plasmon क्या नाम दिया आपने उन्हें? Plasmon. तो हमें plasmon की बात होता है. This is also called बेटा आपका नहीं को हम क्या बोलते थे, cytogene, plasma gene, nuclear gene, ये सब इसी के नाम है. Clear? Genes present inside the nucleus, karyogene. Outside the nucleus, extra karyogene और plasma gene. Done or not जी? हमें इसको ध्यान रखना है. ये ऐसी में हमारी बात हुई थी, मैंने इसी को नाम दिया था आपका मैटरनल इनहेरिटेंस, बिकॉज जीन्स ऑफ साइटोप्लाज्म या साइटोजीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मदर गैमीट्स उससे प्रेजेंट है, दैट्स अ मैटरनल इनहेरिटेंस, इसी को नाम दिया हमने. क्लियर? इसी को नाम दिया हम लोगों ने क्या, ऑर्गेनेलर थे, ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दे आर इन्वॉल्विंग इन इट, तो ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस. प्लास्टिड्स आर इन्वॉल्विंग प्लास्टिड इनहेरिटेंस, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्विंग माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. क्लियर? तो दीज आर द नेम्स. प्लास्टिड इनहेरिटेंस, तो ऐसा ही टूला प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन केस ऑफ मिराबिलिस जलापा, ठीक, आपके मेल स्टेराइलिटी इन मेज प्लांट दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. Albinis in plants, that is हमने कहा कि genes for this present in the chloroplast, these all are the things. क्लियर है कि नहीं? Getting? तो अभी आपकी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तक बात खत्म होगी. क्लियर?